Good afternoon, class 8. This is chapter 7, that is conservation of plants and animals. And today we are starting with the topic conservation laws. These are the laws which are made by our government to protect animals and plants and to protect the wildlife sanctuaries and the national parks. So, the Indian government has enacted laws which ensure the protection of our forest wealth and wildlife. The Indian Forest Act, that is IFA, in 1927 and the Forest Conservation Act in 1980 are the laws for protecting forest land and forest resources. ये किस लिए बनाए गए थे? ताकि forest land और forest resources की protection की जा सके. While the first act defined 3 categories of forest, this first act defined the 3 categories of forest. The second act aims at checking, जो second act है, that is Forest Conservation Act, that aims at checking deforestation caused by the conversion of the forest land to non forest purpose. यानी कि वो इस चीज़ का देखते थे, वो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो कहीं नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा लोगों के द्वारा. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट in 1927 created protected areas to conserve plant and animal species. ये इसलिए बनाया गया था ताकि वहाँ के plants और animal species की protection की जा सके. And the National Forest Policy in 1988 and the National Environment Policy in 2006 lay down guidance for the government regarding environmental management. ये वो एक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे ताकि जो प्लांट्स की जो है अच्छे से उनकी प्रोटेक्शन की जा सके, एनिमल्स की प्रोटेक्शन की जा सके. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई गई थी. इनके ईयर्स आपको याद करने और क्यों बनाई गई थी ये आपको याद करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. There are many government and non-government organizations that are working in the field of wildlife conservation. यानी कि काफ़ी सारी ऐसी भी जो organizations हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉन गवर्नमेंट के थ्रू बनाई हैं जो कि NGOs वगैरह होते हैं. वो काफ़ी सारे ध्यान रखते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में. The World Wide Fund for Nature was founded in 1961, is the world's largest conservation organization working in over 100 countries to reduce the impact of human activity on the environment. ये क्या चीज़ कर रही है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये क्या काम कर रही है वहाँ पर, ये ह्यूमन इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है ताकि इन्वायरमेंट पे ह्यूमन इफ़ेक्ट ज़्यादा ना पड़े. सेकेंड इज़ ओशियाना इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ओशियन कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ओशियन से रिलेटेड है. ये क्या करती है? ओशियन कंजर्वेशन, यानी कि वहाँ पर जो फिशेस वगैरह हैं, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनकी डेथ ना हो पॉल्यूशन की वजह से, या फिर काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी वजह से उनकी डेथ ना हो, उस चीज़ पर वो लोग वर्क कर रहे हैं. इट एम्स एट प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ फिश पॉपुलेशन, ताकि फ़िश पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़ जाए, कोलैप्स ना हो जाए. मेराइन मैमल्स एंड अदर सी लाइफ ड्यू टू कमर्शियल फिशिंग एंड पॉल्यूशन एज वेल. सो ये इस चीज़ पर काम कर रही है. द थर्ड वन इज़ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. Founded in 1883, is one of the largest non-government organization in India, involved the biodiversity conservation and biodiversity research. This is in India, Bombay Natural History Society, that was founded in 1883. The fourth one is the Wildlife Trust of India, works to conserve wildlife and their habitats to secure India's natural heritage. It works with government and communities to reduce human wildlife conflict and undertakes projects to recover the population of critically endangered species. Next thing comes is migration. The large scale movement of animals from one place to another and then back again to their original habitat is called migration. Migration कब होता है? मोस्टली माइग्रेशन विंटर सीजन में होता है, जब जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर.
ओके और फिर जब वापस से सीज़न चेंज होता है, यानी कि वापस से समर सीज़न आ जाता है, तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल हैबिटेट पर आ जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन बैक टू द ओरिजिनल habitat is called migration. Animal migrate in search of food and water. They also migrate to warmer lands during breeding and winter season. See, winter season के टाइम पर वो कहाँ चले जाते हैं? warmer land पर. However, migratory animals face a growing number of threats including habitat destruction, over-exploitation, disease and global climate change. लेकिन उन सारे एनिमल्स को काफ़ी कुछ चेंजेस भी देखने पड़ते हैं, यानी कि जो उनके जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ख़राब कर दिया जाता है. कभी कभी ऐसा भी होता है जो उनका हैबिटेट होता है, वो जैसे फॉरेस्ट में अगर कोई रह रहा है तो वो जब वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं तो उसके बाद अगर आकर वो देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जब फॉरेस्ट बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन वहाँ पर हो जाती है. सो दैट इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. Next thing is one of the most spectacular natural events in the annual wild beast migration is Masai Mara Reserve in Kenya. Around July, a mammoth herd of more than a million wild beasts, 5 lakh gazelles and 2 lakh zebras treks to 2,700 kilometers from the Serengeti, Tanzania, across the border into the rain-fed region of the Mara River. वो सारे के सारे यहाँ से जब उधर की साइड माइग्रेट कर रहे थे तो उस टाइम पे जो इतने सारे 5 लाख ग्रेजर्स एंड 2 लाख जेब्रास जो है उन्होंने 2,700 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था वहाँ मारा रिवर तक पहुँचने के लिए. बाय अक्टूबर द एनिमल रिजर्व द प्रोसेस मेकिंग देयर वे बैक टू सेरेंगेती. और फिर वहाँ से वापस वो कहाँ आए थे? सेरेंगेती में. नाउ हियर अमंग बर्ड्स द आर्कटिक टर्न इज़ फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन. जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आर्कटिक टर्न इज़ फेमस फॉर इट्स माइग्रेशन. ईच ईयर इट फ्लाइज फ्रॉम इट्स आर्कटिक ब्रीडिंग ग्राउंड टू अंटार्कटिक एंड बैक अगेन. यानी कि वो अपना आर्कटिक रीजन से वो अंटार्कटिका तक पूरा ट्रैवल करके जाती है. इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 19,000 किलोमीटर्स. इतना ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करती है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. द सिबेरियन क्रेन हिस्टोरिकली विजिटेड द क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान इन विंटर ईच ईयर. जो सिबेरियन क्रेन है वो हमेशा हर साल क्योलाडियो नेशनल पार्क में, जो कि राजस्थान में है, विंटर्स में हमेशा आती है. हाउएवर द लास्ट क्रेन वर साइटेड इन 2002 बट अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट उनकी क्रेन थी वो कब आई थी? 2002 में. एंड हैव सिंस स्टॉप्ड विजिटिंग द वेटलैंड्स. और तब से यहाँ आना बंद कर दिया. देयर पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ हंटिंग अलोंग देयर माइग्रेशन रूट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. क्या वो किस वजह से? एक तो हंटिंग की वजह से. हंटिंग इज़ द मेन रीज़न एंड ऑल्सो द वेटलैंड इज़ कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. दैट्स वाई दे स्टॉप कमिंग हेयर. Now our chapter is done here. We have science vocabulary here, and let's recall the chapter first. Biodiversity is a variety of plant and animals and microorganisms found on the earth. The plant life and the animal life of the habitat are known as the flora and fauna respectively. Endemic species are plants and animals that are found only in a particular area. The causes of loss of biodiversity are deforestation, population introduction of invasive species, poaching and natural disaster. Conservation is the preservation and careful management of plant and animal species in order to prevent their extinction. India has set up biodiversity-rich protected areas which include national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. The large-scale movement of wildlife animals from one place to another then back again to their original habitat is called migration. That's it. Your chapter is done.